right, we are getting in breaking inputs. In fact, we are learning that Union Home Minister Amit Shah has also, in fact, reacted on Vinesh Phogat's disqualification. He's going on to say that Vinesh Phogat's setback in the Olympics has certainly broken the hopes of millions of Indians. She has a brilliant sporting career, shining with the glory of defeating the world champion. This misfortune is merely an exception in her trailblazing career, from which I am sure she will bounce back to be the winner she always is. Our best wishes and support are always with her. Remember, just a while ago, Prime Minister Modi had also tweeted similar sentiments for Vinesh Phogat. Let's quickly go across to Payal Mehta, who will be joining me, who's in fact joining me on the phone line. Overall, the entire establishment, Payal, now is supporting Vinesh, and they're only encouraging her. They have words only to commend her resilience. Well, absolutely. The tweet coming in from the Prime Minister, the tweet coming in from the Home Minister essentially expresses the sentiment that is there in India right now, because we wanted Vinesh to hit that goal, century. So the Home Minister himself, who's been a member of the Gujarat Cricket Association, has been somebody who's an avid sports lover, also coming out and saying that he's devastated to hear this news about whatever's happened to Vinesh Phogat, and he's assuring her that this particular one incident will not take away the credit from her of the achievement that she's had in her sporting career as well. Everybody is asking her, all the politicians across party lines are asking her to hold on to her entire career and take pride in whatever she's achieved so far. But like I said, that every possible route is being taken. So whatever recourse needs to be taken, whether it's to the appeal which the IOA has already done, to the Prime Minister calling up and speaking to PT Usha multiple number of times, the Sports Minister also speaking to all the officials in the Indian Olympic Association who are there in Paris. So everything is being done to see what can be done and what are the best options that will be available for Vinesh right now. But what we are given to understand is that Vinesh has been completely devastated, in fact, after what had transpired with her, a few hours ago. Absolutely. And having said that, you just mentioned how, the government in its capacity has pushed the IOA. As we also know, Prime Minister spoke with PT Usha. Subsequently, an appeal has also been filed with the IOC. Give us a sense of the kind of efforts that the Indian establishment is putting in to refute that decision. See, look, this is an international tournament. So, in the sense, if you have to actually make an appeal, you have to make an appeal. There's a procedure which has to be in place that you have to appeal within the first 30 days. If I'm not really wrong, in terms of how you can appeal against this particular thing that has transpired as well. So all the options that are available before the Indian establishment are going to be tried. So that's why, you've seen PT Usha being dialed immediately after this episode came to the light by the Prime Minister himself. He spoke to her at length, took the detail of the entire matter which came to the fore. The Prime Minister has also met the Sports Minister, understood from him also what the situation on ground really is. And of course, the Sports Minister will be giving out the details further, in his address at 3 p.m. this afternoon in the Lok Sabha. But like I said, that, everybody is devastated with what's happening. Everybody is trying to give her some hope of what really can be, there in the future times to come, and telling her to take heart from the fact that she fought it right at the top and fought it to the best of her abilities. But there are certain factors which are beyond her control, is what everybody is trying to say. So, she should not feel disheartened about this. She is still a star. She's a champion amongst champions. That's what the Prime Minister really said in his tweet. Absolutely. The opening line said that you're a champion amongst champions. And I cannot express in words the despair that I feel about what has happened so far. So obviously those strong words coming in, today the Prime Minister speaks as the Prime Minister of the country and not the leader of a political party. Because, remember, a political tone, Akansha has also been given to this entire matter, trying to say that the government didn't support Vinesh. And in no way is the decision any kind of commentary on Vinesh Phogat's own wrestling skills. Remember, she's been known as the giant slayer. Many thanks to you, Payal, for bringing in all those inputs. Let's also listen into all the voices that are coming in from the wrestling fraternity. Let's play out what Mahavir Singh Phogat has to say. महावीर जी, क्या बताया गया है आपको, क्या कारण दिया गया है, पर्टिकुलर कारण विनेश को डिस्क्वालीफाई करने का? जो सुबह वजन हुआ था उसका, जो 150 ग्राम वजन फालतू ज़्यादा रह गया, इस कारण वो डिस्क्वालीफाई हो गया। तो इस सिचुएशन के अंदर क्या इंडियन साइड ने अपनी तरफ से, जो कोचेस थे उन्होंने कुछ कोशिशें की, क्या हुआ? कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रूल्स के हिसाब से तो ये हो गई, रूल के हिसाब से। इसमें सही गलत की बात नहीं रहती है, मैं समझता हूँ, क्योंकि रूल्स का इसके अंदर पूरा हवाला दिया जा रहा है। बिल्कुल रूल का हवाला। अभी मैं जानता हूँ कि आपके लिए बड़ा मुश्किल क्षण है ये, क्योंकि उस गोल्ड पदक तक इतने नज़दीक पहुँच के डिस्क्वालीफाई होना एक बहुत बड़ा झटका है।
आपकी आंखों में आंसू ऑलरेडी, आप ऑलरेडी इतने परेशान नज़र आ रहे हैं। अब क्या आगे के लिए क्या रहेगा रणनीति? बस आगे के लिए तो 28 के ओलंपिक के लिए तैयारी करेंगे बेसिकली। 28 के ओलंपिक की तैयारी करेंगी। अच्छा, आप विनेश से अभी, हालांकि चंद मिनट हुए इस खबर को आए, क्या विनेश से बात हो पाई है या किसी से उस खेमे में बात हो पाई है? क्योंकि आप बता रहे थे आपके भतीजे भी गए हैं वहाँ पे। ना, जो बेटी संगीता है बजरंग, उससे समाचार मिला था। अच्छा, तो उन्होंने, बजरंग ने और संगीता ने कुछ बताया है आपको कि अभी क्या उनका मानसिक स्थिति है विनेश की? क्या वो अभी किस तरीके से इस खबर से कोप कर रही है? मेडल दो गवर्नमेंट के नज़दीक और ये घटना घट जाती है तो कोई भी ले क्या बीतती है उसके अंदर। लेकिन सिल्वर से क्या संतुष्ट थी? अब तो इस बार सिल्वर से ही संतुष्टि रखनी पड़ेगी, ये समझ आ रहा है? नहीं, कोई मेडल नहीं। कोई मेडल नहीं जी। Alright, remember the news has been deeply tragic, not just for the wrestling fraternity but for all of India. And CNN News 18 also spoke with wrestler Vijender Singh. Listen in to what he has to say. काफ़ी दुखद दिन है पूरे देश के लिए, सिर्फ विनेश के लिए नहीं। आप क्या समझते हैं इस पूरी स्थिति को लेके सर? जी, पूरी स्थिति बहुत कहते कि गंभीर है, दुखद है और चिंता का विषय है। लाइक कैसे, हाउ कम, मैं कई सवाल है उनका जवाब नहीं मिल रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है। बिकॉज हमने इतने ओलंपिक करियर में, लाइक 12 साल का ओलंपिक में हमने किया, 4, 8, 12 के ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया, लेकिन हमने कभी ना कभी देखा, ना कभी हमने सुना इस तरह का डिसीजन कोई लेता है। तो हमारे लिए कहते हैं कि बिल्कुल हमारा दिल टूट चुका है और बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं मिल पा रहे हमें भी। एक आम आदमी के तौर पे एक सवाल दिमाग में आता है, आप खिलाड़ी के तौर पे शायद इस पे थोड़ा हमें जानकारी दे सकते हैं। 3 गेम एक ही दिन में कल खेली, तीनों में वो विजेता घोषित हुई और अगले दिन ही आपका फाइनल बाउट है। एक खिलाड़ी, उसको अपना वेट भी मेंटेन करना है, उसको अपनी कैटेगरी में वेट मेंटेन रखना है अगले दिन के लिए। इतनी डिहाइड्रेशन हो जाती है 3 गेमों के बाद, ये काफ़ी सख्त नहीं है सर एक इंसान पे? नहीं मैम, हमारे साथ होता है, हम लोग कर सकते हैं। और हम तो ये तो बहुत कहते हैं छोटी छोटी बातें होती हैं। हम खाने की तरफ नहीं भागते, हम भागते हैं रिकवरी की तरफ। हमें मालूम है कि 3 फाइट हो चुकी है हमारी, तो हमारी बॉडी टायर्ड है, तो विल गो फॉर आइस बाथ, वी गो फॉर लाइक सम काइंड ऑफ लाइक इलेक्ट्रोल और दैट वाटर वी वांट, दैट्स इट। हम नहीं चाहते कि हम खाना खाएं या हमारा वेट ऊपर हो। और वो कहते हैं मेडल को उसको सामने दिखाई दे रहा है कि मेडल मेरे हाथ में है, आई बीट एवरीवन, और वो वेट कैसे बढ़ा सकती है, वो कैसे खा सकती है, मैं ये समझ से परे है मेरे। धन्यवाद समय निकालने के लिए। व्हाट डू यू मेक ऑफ द ऑनगोइंग सिचुएशन? क्या समझती हैं आप? थोड़े से ग्राम से ज़्यादा उनका वेट आया, 15 मिनट की विंडो होती है, ये हमें समझ में आ रहा है। 2 दिन ये वेन चलता है। कल तक वो वेट कैटेगरी में क्वालिफाइड थी, सीमित थी। आज दिस इज़ हाउ इट शेप्ड अप अलका जी। तो व्हाट डू वी एक्सपेक्ट नेक्स्ट? कैसे इसको आगे लेके जा सकते हैं? देखिए, बहुत ज्यादा दुख हो रहा है सुन के। जब से सुना है, पता लगा है कि विनेश को डिस्क्वालीफाई कर दिया। 100 ग्राम वेट उसका ज्यादा था और पता नहीं ये मिस्टेक कैसे हुई है, क्योंकि उनको सारा कुछ पता था कि 2 दिन आपका वेट होना है। पहले टाइम पे, जैसे जब साक्षी का मेडल आया था, उस टाइम पे शायद 1 दिन ही वेट होता था और फाइनल हो जाता था। लेकिन अब 2 दिन हमारी फाइट चल रही है, दूसरे दिन अगर हमारा फाइनल हो रहा है तो आपका 1 दिन 2 दिन ही वेट होगा। तो आपको जिस वेट कैटेगरी में आप खेले हो उतना ही वेट आपको दिखाना होता है। 50 केजी में आप खेले तो 500 आपको दिखाना होगा। वो 1 भी ग्राम वेट आपका ज्यादा नहीं लेंगे। ये एक रूल रेगुलेशन बनाए हुए हैं बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से। तो समझ में नहीं आ रहा है कि इस लेवल पे आके इतनी बड़ी गलती हमसे हो रही है कि जैसे जहाँ पे उसने वेट पहले चेक किया होगा, पूरा आया होगा उसका वेट, जिस मशीन पे फाइनल वेट देना होगा उस पे उसका 100 ग्राम वेट ज्यादा आया है, तो उसकी वजह से ही गड़बड़ी हुई है कुछ। तो इस लेवल पे आगे ये सुनने को मिल रहा है तो बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि फाइनल में हम हैं और फाइनल की कुश्ती भी हमको पता है कि विनेश निकाल लेगी, गोल्ड मेडल वो ले लेगी। तो बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, बहुत दुख हो रहा है ये सुनकर।
अलका जी, क्योंकि आप इस खेल को सबसे अच्छे से समझती हैं हम सब में से, आप हमें बता सकती हैं कि क्या कोई उम्मीद है, हम कोई आशा रख सकते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन वापस लिया जाएगा? क्योंकि बहुत सख्त रूल्स होते हैं और आप हमें बता रही हैं कि ये 2 विंडो होती है, 2 दिन वेन किया जाता है एथलीट्स को, स्पेशली अगर हम फाइनल्स की बात करें। तो अगर इसे चैलेंज करने की उम्मीद रखी जाए तो क्या आईओसी एक और विंडो दे सकता है विनेश को? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, अब चैलेंज वगैरह कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये रूल रेगुलेशन इतने हार्ड होते हैं कि अगर आपने एक बार वेट नहीं दिखाया, जो टाइमिंग होता है वेट का, मेरे ख्याल से 8 ओ क्लॉक से 8:30 तक इनका वेट होगा, तो उस टाइम पे अगर आपने नहीं दिखाया तो उसके बाद ये कोई भी एक्सक्यूज आपका नहीं मानेंगे, क्योंकि आप को पता है ये किस लेवल के ये गेम्स हो रहे हैं, ओलंपिक्स लेवल के ये गेम हो रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई भी एक्सक्यूज या कुछ भी ये फॉलो करेंगे और हमको चांस देंगे। अभी मैंने एक ओलंपिक एथलेटिक्स का चल रहा था, तो उसमें भी एक ओलंपिक मेडलिस्ट था, वो लड़का सिल्वर मेडलिस्ट था, उसने थोड़ा सा ही स्टार्टिंग एकदम से 1 सेकंड कर दिया ज्यादा, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। उसने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की, उसने बहुत हाथ जोड़े उनके, उसने कहा मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दो, अगली बार ले जाओ, लेकिन उन्होंने नहीं माना, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया था उसने।